एलिया और मूसा जो यहूदियों के लिए फिर से वापस जा रहे हैं। We're ready for it. Everything's set in order. Just ready. This Gentile message, as the Jews brought it to the Gentiles will take it right back to the Jews again. And the rapture will come. हम इसके लिए तैयार हैं। हर एक चीज क्रम में रखी हुई है, बस तैयार है। यह अन्य जातियों का संदेश, जैसा कि यहूदियों ने इसे अन्य जातियों के लिए लाया, अन्य जाति इसे फिर से ठीक यहूदियों के पास वापस ले जाएंगे और रैप्चर हो जाएगा। Now remember, this here coming after the tribulation, the church does not go through the tribulation. We know that. The Bible says so. See? अब याद रखना, यह यहाँ पर आता है, महासंकट के बाद कलीसिया महासंकट में से होकर नहीं जाती है। हम ये जानते हैं, बाइबल ऐसा कहती है। देखा? All right. Now you pour out upon the house of Israel what? The same Holy Spirit. See? After the Gentile church is gone. तो ठीक है, अब वो इज़राइल के घराने पर उंडेल देगा। क्या? उसी पवित्र आत्मा को, अन्य जाति कलीसिया के चले जाने के बाद। And they look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one that mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलोटे के लिए करते हैं। And in that day shall there be great mourning in Jerusalem, and mourning and the valley of Medio. उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में, हदीमोन में हुआ था। And the land shall mourn every family apart, the family of the house of David apart, and the family of the house of Nathan apart, and each one of the houses apart. और सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। When they see what will happen, what will take place, when he comes in the clouds of glory at his second appearing, and when those Jews who pierced him. जब वे देखेंगे क्या होगा, क्या बात जगह लेगी, जब वो महिमा के बादलों में आएगा उसकी दूसरी उपस्थिति में, और जब उन यहूदियों ने जो उन्हें छेदा है। You know, another scripture says, they'll ask him, where did he get these wounds? He said, in the house of my friend. आप जानते हैं, एक और वचन कहता है कि वे उनसे पूछेंगे, उसे ये घाव कहाँ से मिले? उसने कहा, मेरे मित्र के घराने में। And not only will it be a mournful time for the Jews who rejected him as Messiah, but it'll be a mournful time for them left Gentiles back here who has rejected him as their Messiah of this day. और ना ही केवल यह यहूदियों के लिए एक शोकपूर्ण समय होगा जिन्होंने उसे मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह उनके लिए एक शोकपूर्ण समय होगा उन अन्य जातियों के लिए जो यहाँ पीछे बचे हुए हैं, जिन्होंने उसे इस दिन पर अपने मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया है। They'll be wailing and weeping. The sleeping virgin will be wailing. That's that church that refused to get oil in its life. वे विलाप करेंगे और रोते रहेंगे, सोई हुई कुंवारी विलाप करेगी। यही वो कलीसिया है जिसने उसके उजाले में तेल लेने से अस्वीकार कर दिया था। There were 10 virgins went out, all good people, but 5 of them had oil in their land. The other 5 were good people, but failed to get oil in their land. And they were cast out into outer darkness where there be weeping, wailing, and gnashing of teeth. वहाँ 10 कुंवारियां निकल पड़ी, सारे अच्छे लोग थे, लेकिन उनमें से 5 के दियों में तेल था। दूसरे 5 अच्छे लोग थे, भले लोग थे, लेकिन वे अपने दियों में तेल लेने में असफल रहे और उन्हें बाहर अंधकार में डाल दिया गया, जहाँ विलाप करना, रोना और दांतों का पीसना होगा। Here it is. They'll be wailing. The Bible said here, they'll be wailing and so broken-hearted until even, here, I'll give you another Genesis 45. If you want to get to that, let's get to it just a moment and read that also in Genesis, I believe the 45th chapter of Genesis. यहाँ है ये
वे विलाप करेंगे। बाइबल ने यहाँ कहा वे विलाप करेंगे। उनका हृदय इतना टूटा हुआ होगा, इतना तक कि यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊंगा। उत्पत्ति 45, यदि आप इसे लेना चाहते हैं, आइए इसे लेंगे बस कुछ क्षण के लिए, और इसे उत्पत्ति में भी पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ उत्पत्ति के 45वें अध्याय में I'd like to get this here, Joseph making himself known to his people. And we'll get this, just show the types of what will take place in that day. And then we'll bind together. मैं यहाँ इसे लेना चाहता हूँ। यूसुफ जो अपने लोगों को खुद को प्रकट कर रहा है, और हम इसे ले लेंगे बस ये दिखाने के लिए वे प्रतिछाया थी कि उस दिन में क्या बात जगह लेने वाली है। तब हम इसे एक साथ जोड़ देंगे। Then Joseph could not refrain himself before them that stood by him, and he cried, caused every man to go from me. तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। Now remember, Joseph, making himself known, he cried, every man go from before me. अब याद रखें, यूसुफ अपने आप को ज्ञात करवाते हुए वह रोया, सब लोगों को मेरे सामने से बाहर कर दो। And there stood no man with him while Joseph made himself known to his brethren. भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। And he wept aloud. And the Egyptians and the house of Pharaoh heard him. He must have screamed out. तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्त्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। वह अवश्य ही चिल्लाया होगा। Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Does my father yet live? And his brother could not answer him, for they were troubled at his presence. तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। And Joseph said unto his brethren, Come near me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, who you sold into Egypt. फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र आने हालों के हाथ में बेच डाला था। Now therefore do not be grieved nor angry with yourselves that you have sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Oh, how beautiful! अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। ओह, कितना सुंदर है! For these 2 years has famine been in the land, and in which there shall be neither be ear nor harvest. क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by great deliverance. सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। Let me just take now and compare that with Zechariah the 12th just for a moment. Now, we know that in type, if you teach types, then you always get it right, I think, in type. मैं बस अब इसे ले लूंगा और इसे जकरया 12 के साथ तुलना करूंगा, बस कुछ क्षण के लिए। अब हम यह जानते हैं प्रतिछाया में, यदि आप प्रतिछाया में सिखाते हैं तो आपको हमेशा ही सही बात मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ प्रतिछाया में। Now, Joseph, when he was born, he was hated by his brethren. Is that right? I want to show you Joseph represents the Spirit-filled church. अब यूसुफ जब उसने जन्म लिया था तो उसे अपने भाइयों के द्वारा घृणित किया गया था। क्या यह सही है? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूसुफ आत्मा से भरी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। Joseph was hated of his brethren. Why? Because he was spiritual. Joseph could not help because
He could see visions. He could not help because he dreamed dreams. See? And could interpret dreams. That was what was in him. He could not display anything else but what that was in him. यूसुफ को अपने भाइयों के द्वारा घृणित किया गया था। क्यों? क्योंकि वह आत्मिक था। यूसुफ कोई सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि वह दर्शन को देख सकता था। वह सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि वह सपनों को देखता था और सपने का अनुवाद कर सकता था। वो यही था जो उसमें था। वह कुछ और प्रदर्शित नहीं कर सकता था सिवाय उसके जो उसमें था। Well, then his brothers hated him without a cause. But his father loved him because his father was a prophet. तो ठीक है, तो उसके भाइयों ने उससे घृणा की बिना किसी कारण के, लेकिन उसके पिता ने उससे प्रेम किया था क्योंकि उसका पिता एक नबी था। See how it was with Jesus? God loved his son, but the brethren, the Pharisees and Sadducees, hated him because he could heal the sick and foretell things and see visions, interpret. See what I mean? They hated him without a cause. देखा यह बात यीशु के साथ किस तरह से थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम किया, लेकिन भाइयों ने, फरीसियों और सदुकियों ने उससे घृणा की क्योंकि वह बीमारों को चंगा कर सकता था और होने वाली बातों को पहले से बता सकता था और दर्शनों को देखता था, अनुवाद को कर सकता था। समझे मेरा क्या अर्थ है? उन्होंने उससे बिना किसी कारण से घृणा की थी। And what did they do to Joseph? They pretended he was dead and they threw him into a ditch. Took a bloody coat of 7 colors that his father, there's only 7 colors in the rainbow, we know what, we get to it a little later I think tonight. और उन्होंने यूसुफ के साथ क्या किया? उन्होंने नाटक को किया कि वह मर चुका है और उन्होंने उसे खड्डे में फेंक दिया। लहूलुहान वस्त्र को लिया जो 7 रंगों का था, जिसे उसके पिता ने, वहाँ मेघधनुष में केवल 7 रंग होते हैं और मेघधनुष हम ये जानते हैं कि हम इसे थोड़ी देर बाद ले लेंगे। मैं सोचता हूँ आज रात को। The rainbow over him here, Jesus, where he's look upon his jasper and sardis stone and a rainbow. Rainbow is a covenant, and that was God's covenant upon Joseph. यह उस पर मेघधनुष था, यीशु, जहाँ वह यशब और मानिक पत्थर और मेघधनुष सा दिखाई पड़ता है। एक मेघधनुष एक वाचा है और यह यूसुफ पर परमेश्वर की वाचा थी। And then they blew it on his coat and took it back to the father, and he's supposed to be dead. और फिर उन्होंने उसके वस्त्र पर लहू को लगाया और उसे पिता के पास वस्त्र को वापस ले गए और वो मरने वाला था। But he was raised up out of the ditch and was put into sold to Pharaoh, some in Egypt, and a general kept him. And when they did, ill thing come up against him and threw him in jail. और लेकिन उसे खड्डे से बाहर निकाला गया था और उसे एक फिरौन को बेच दिया गया। मिस्र में किसी को तो बेचा गया और एक सेनापति ने उसे रख लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके विरोध में एक गलत बात ऊपर आई और उसे जेल में डाल दिया। And there he prophesied and told 2 men where one would go and where the other would go, the butler and the baker, on account of their dream. And then he was exalted from there to the right hand of Pharaoh. And no man could touch Pharaoh only through Joseph. और वहां उसने भविष्यवाणी की और 2 व्यक्तियों को बताया कि वो एक कहाँ जाएगा और दूसरा एक कहाँ पर जाएगा, पिलाने हारा और पकाने हारा, उनके सपने के हिसाब से। और फिर उसे वहां से ऊंचा किया गया था फिरौन के दाहिने हाथ की ओर, और कोई भी मनुष्य फिरौन को नहीं छू सकता था केवल यूसुफ के जरिए से। Watch this. Now when Joseph then was sold over into the Egyptians, and what everything he done type Christ. Look at this butler and this baker in there, and they both had dreams. यह क्या? अब जब यूसुफ को तब मिस्त्रियों के लिए बेच दिया गया था, और देखो उसने जो कुछ किया यह मसीह की प्रतिछाया थी। इस पिलाने हारा और पकाने हारा को देखें, और उन दोनों के पास सपने थे। And Jesus, when he was in his prison house, remember Joseph was in prison, and when Jesus was in his prison house, tacked to a cross, there was one saved and one lost. Joseph, when he was in his prison, one was saved,
one was lost. और यीशु जब वो उसके कैद खाने में था, याद रखना यूसुफ कैद में था, और जब यीशु उसके कैद खाने में था, कैसे एक क्रूस पर कीलों से टंगा हुआ, वहां पर एक बचाया गया था और एक नष्ट हुआ था। यूसुफ जब वो उसके कैद में था, एक को बचा लिया गया था, एक नष्ट हुआ था। And notice, then after Jesus was taken off the cross, he was exalted into heaven and sat at the right hand of the great Spirit Jehovah. No man can come to God except by me. और ध्यान देना, तब बाद में यीशु को क्रूस पर से उठा लिया गया था, वह स्वर्ग में उठा लिया गया और उस महान आत्मा यहोवा के दाहिने हाथ में बैठता है। बिना मेरे कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। No Hail Marys, no blessed this or blessed that, but through Jesus Christ, the only mediator that is between God and man. That precious body that God tabernacled in among us, that took God's name, and God took the name of human, God took... ना ही कोई मरियम तेरी जय, ना ही यह धन्य हो या वो धन्य हो के जरिए से, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र बिचवाई है, वो बहुमूल्य देह है, जिसमें से होकर परमेश्वर ने हमारे बीच में वास किया, जिसने परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर ने मनुष्य का नाम लिया, परमेश्वर ने लिया। Look here, in the beginning, when Adam, I just can't get away from that. Seems like somebody's not getting it somewhere. यहाँ देखना, आरंभ में जब आदम, मैं बस उससे दूर नहीं जा सकता, ऐसा दिखाई देता है कि कोई तो इसे नहीं समझ रहा है, कहीं पर तो। Look, in the beginning, let me show you something again. The Holy Spirit warns me to do this. I'm leaving my subject for a minute. देखो, आरंभ में मैं आपको फिर से कुछ दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा करने के लिए आज्ञा दे रहा है। मैं 1 मिनट के लिए अपना विषय छोड़ रहा हूँ। When the first news come to glory that the son had been lost, Adam, did God send an angel? Did he send a son? Did he send anyone else? He came himself to redeem his lost son. Hallelujah! जब महिमा में पहली खबर मिली कि पुत्र खो चुका है, वो आदम, क्या परमेश्वर ने एक दूत को भेजा? क्या उसने पुत्र को भेजा? क्या उसने किसी और को भेजा? वह स्वयं आया ताकि अपने खोए हुए पुत्र को छुड़ाए। हालेलुया! God didn't trust it with no one but himself. God was made flesh and dwelt among us and redeemed man himself. We are saved, the Bible says, by the blood of God. परमेश्वर ने इसका किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय खुद के। परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और उसने स्वयं मनुष्य को छुड़ाया। यह हम बचाए गए हैं। बाइबल ने कहा परमेश्वर के लहू के द्वारा। The immortal God was made mortal in order to take away sin, to be the Lamb himself, to enter into glory, veiled and with the own blood before him, beyond the veil. मरणहार परमेश्वर, अमरहार परमेश्वर मरणहार बन गया था, जिससे कि पाप को दूर करे, खुद मेमना बन जाए ताकि महिमा में प्रवेश करे। पर्दा हुआ और उसके सामने अपने स्वयं के लहू के साथ हो, पर्दे के उस पार। Now, Joseph, down into Egypt, he goes, and there he was exalted from his prison to the right hand of Pharaoh, and was made the caretaker, and everything prospered in the days of Joseph. अब यूसुफ वहाँ मिस्र में चला जाता है और वहाँ उसे कैद से निकालकर ऊंचा किया गया फिरौन के दाहिने हाथ पर, और उसे कार्यवाहक बनाया गया, और यूसुफ के दिनों में सब कुछ फलने फूलने लगा था। Now when Jesus returns, even the desert shall blossom like a rose. Hallelujah. He is the son of prosperity, type of Joseph. अब जब यीशु वापस आता है, यहाँ तक कि रेगिस्तान भी गुलाब की तरह खिल उठेगा। वह फलने फूलने का पुत्र है, यूसुफ की प्रतिछाया। They put Joseph in, the general had him in his house, everything he done, he prospered. They put him in jail, and the whole jail prospered. Everything they done, he prospered. उन्होंने यूसुफ को डाल, सेनापति ने उसे अपने घर में रखा था। उसने जो कुछ किया वह फलने फूलने लगा। उन्होंने उसे जेल में डाला और सारा जेल फलने फूलने लगा। उन्होंने जो कुछ भी किया वह फलने फूलने लगा। And when he exalted the highest of Pharaoh, next
to Pharaoh everything in Egypt prospered above anything in the world. और जब वह फिरौन के पास ऊंचा उठाया गया, सबसे ऊपर फिरौन के पास हर एक चीज मिस्र में, संसार में हर किसी से ऊपर बढ़ने लगा। When he returns, it'll be a land of prosperity. The old deserts will blossom and there'll be food everywhere, and we can everyone sit on our own fig tree and laugh and rejoice and live forever in his presence when he comes back as king. जब वो लौटता है तो यह फलने फूलने वाला देश होगा, पुराने रेगिस्तान खिल उठेंगे और हर स्थान पर अन्न होगा, और हम हर एक जन हमारे खुद अपने ही अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं और हंस सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं और हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं जब वो राजा की नाई वापस आएगा। He was Son of Man, prophet. Amen. He was Son of Man, sacrifice, priest. He's Son of Man as King, the Son of David, standing on the throne of His Majesty. वो मनुष्य का पुत्र था, नबी, आमीन। वो मनुष्य का पुत्र था, बलिदान, याजक। वह मनुष्य का पुत्र है, राजा की नाई, दाऊद का पुत्र, जो वैभव के सिंहासन पर बैठा हुआ है। Son of Man. He's God manifested as Son of Man. He come down and become man to take sins away from the world. मनुष्य का पुत्र, वह परमेश्वर मनुष्य का पुत्र की नाई में प्रकट हुआ। वह नीचे उतर कर आता है और मनुष्य बनता है ताकि पापों को संसार से दूर लेकर जाए। He become man as a prophet. He become man as a priest. He become man as king. वो मनुष्य बनता है एक नबी की नाई, वो मनुष्य बनता है एक याजक की नाई, वो मनुष्य बनता है राजा की नाई। King of heaven, King of saints, the eternal King. Always was King, always will be King, eternal King. स्वर्ग का राजा, संतों का राजा, अनंत राजा, हमेशा ही राजा था, हमेशा राजा रहेगा, वो अनंत राजा है। Now, notice, then Joseph, before Joseph went forth, they had to sound the trumpet first, and people screamed, bow the knee for Joseph. अब ध्यान देना, फिर यूसुफ के आगे जाने से पहले वे पहले तुरही को बजाते थे और लोग चिल्ला उठते, यूसुफ के लिए घुटने टिकाओ। No matter what a man was doing, he was selling a product on the street. When that trumpet sounded, he bowed his knee. A man was just not ready to reach out and get his money, but he bowed his knee. Joseph was coming. कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मनुष्य क्या कर रहा था, वह रास्ते पर कुछ सामान को बेच रहा होता था। जब वह तुरही की आवाज होती, वो अपने घुटने को झुका देता। एक मनुष्य बस लगभग पहुंचने पर होता और अपने पैसे को लेने पर होता, लेकिन वो अपना घुटना झुका देता। यूसुफ आ रहा था। Oh, the eunuch was just about ready to make his act, but when he had to stop, Joseph is coming. The trumpet sounded. ओह, एक नाटककार लगभग अपने नाट्य को करने के लिए तैयार होता, और तो उसे क्या करना पड़ता था? उसे रुकना पड़ता था। यूसुफ आ रहा है। तुरही बज उठती। One of these days, everything, even time, will stand still. When the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise, and the morning break the eternal bride is there. इन दिनों में से एक, हर एक चीज, यहाँ तक कि समय भी रुक जाएगा, जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे, और सुबह वो अनंतता में खुलेगी, उज्जवल और साफ। Everything will bow the knee, every knee shall bow, and every tongue shall confess to it. Start now. Some man's sins go before, some follow. हर एक चीज घुटने टेक देगी, हर एक घुटना झुकेगा और हर जीभ इसे अंगीकार करेगी। अब आरंभ करें। कुछ मनुष्यों के पाप पहले जाते हैं, कुछ के बाद में। But now notice what's taking place, how glorious. When Joseph then, after he married a Gentile and received a family, Ephraim and Manasseh, his sons. लेकिन अब ध्यान दें कि किस बात ने जगह ली, कितना महिमामय है। जब यूसुफ उसके अन्य जाति में विवाह करने के बाद उसका एक परिवार हुआ, अप्रेम और मनश्शे,
जो उसके पुत्र हुए थे। Did you notice at the end when Jacob started to bless Ephraim and Manasseh? When he started to put his hands, he put Ephraim on the right, Manasseh on the left, to get the right hand blessing, the oldest. क्या आपने अंत में ध्यान दिया जब यूसुफ याकूब ने अप्रेम और मनशे को आशीष देने लगा, जब उसने वो अपने हाथ को रखने लगा तो उसने अप्रेम को दाईं ओर, मनशे को बाईं ओर रखा ताकि दाहिने हाथ से बड़े को आशीष दे सके। But when he started to pray, his hands crossed. And he gave the youngest one the right hand blessing instead of the one that was on the right hand. लेकिन जब उसने प्रार्थना करना आरंभ किया तो उसके हाथ घूम गए और उसने छोटे को दाहिने हाथ से आशीष दी बजाय उस एक को जो उसके दाहिने हाथ पर था। And Joseph said, "Not so, Father. Said you have put the blessing on Manasseh instead of on Ephraim." And he said, "God has crossed my hands." और यूसुफ ने कहा, ऐसा नहीं है पिता। कहा, आपने अप्रेम के बजाय मनश्शे को आशीष दे दी है। और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे हाथ को घुमा दिया। But from the Jews, the oldest, the first chosen of God, through the cross, come the blessing back to the Gentiles to get the bride. क्या यहूदियों में से जो बड़ा था, जो परमेश्वर का पहला चुना हुआ था, क्रूस के जरिए से अन्य जातियों पर आशीष वापस आती है। आशीष क्रूस के जरिए से आती है, यहूदी से अन्य जातियों के लिए। Blessing comes through the cross, from the Jew to the Gentile. Rejected, they rejected the cross. Therefore, he got the Gentile bride. अस्वीकार कर दिया, उन्होंने क्रूस को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसके पास अन्य जाति की दुल्हन है। Now, when Joseph before this, when he was heard of his brethren who they had been out of fellowship for many years, the Jews. अब जब यूसुफ इससे पहले जब उसने अपने भाइयों के बारे में सुना था जो वे कई वर्षों से वे संगति से बाहर थे, जो यहूदी हैं। Now watch, we're getting back to Zechariah now. Where they wail and mourn, and wail, and even families will separate themselves from other families. How did we do it? How could we have ever done it? अब देखो, हम जकरिया के पास वापस जा रहे हैं, जहां वे शोक करते, विलाप कर रहे हैं और शोक मनाते हैं, और यहाँ तक कि वे परिवार खुद को दूसरे परिवारों से अलग करेंगे, बाहर जाकर कहते हैं, हमने इसे कैसे किया, हम भला इसे कभी कैसे कर सकते थे। Where'd you get them scars? Them prints in your hands, even those that pierced him. He'll come in the clouds and they'll see him. Even those who pierced him in every house will mourn and they'll wail. They won't know what to do. जब वे कहते, तुम्हें वे घाव के निशान कहाँ से मिले, वे घावों के निशान जो हाथों में हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसे छेदा वह बादलों में आएगा और वे उसे देखेंगे, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने उसे छेदा था, और हर एक घराना शोक करेगा और वे विलाप करेंगे, वे नहीं जानते कि क्या करें। And when Joseph, you know the story, when he seen his brothers and he make out like he couldn't speak Hebrew, he got the interpretator to interpret for him, and he couldn't speak Hebrew, he act like, but he wanted to find out. और जब यूसुफ, आप कहानी को जानते हैं, जब उसने अपने भाइयों को देखा और उसने ऐसा दिखाया कि वह इब्रानी भाषा को नहीं बोल सकता, और उसका अनुवादक करने के लिए अनुवादक को लिया, और उसने ऐसा अभिनय किया कि वो इब्रानी नहीं बोल सकता, लेकिन वह जानना चाहता था। And finally, one day when they brought his little brother, did you notice it was Benjamin that set Joseph's soul afire? What is it today that's going to set his soul afire? Our Joseph Jesus. और इसलिए जब अतः एक दिन जब उन्होंने अपने छोटे भाई को लाया, तो क्या आपने ध्यान दिया, यह बिन्यामीन था जिसने यूसुफ के प्राण को उत्तेजित कर दिया। यह क्या है? यही उसके प्राण को प्रज्वलित कर देगा, हमारे यूसुफ को जो यीशु है। That young church has been down in Iran, now has kept the commandments of God, and it's a newborn people is gathered into Palestine and restored back to God. वो छोटी कलीसिया जो वहाँ नीचे ईरान में रही है,
जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को थामे रखा, और ये एक नया जन्म पाए हुए लोग हैं जो फिलिस्तीन में इकट्ठा हुए थे और फिर से लौटाए गए हैं। That 6-point Star of David, the oldest flag in the world. Our nation has been born in the last few years. There's Israel. जो 6 कोनों वाला दाऊद का तारा है, जो संसार का सबसे पुराना झंडा है, एक राष्ट्र जो पिछले कुछ ही वर्षों में जन्मा है, वहाँ इजराइल है। Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जागृत हो रहा है, वो चिन्ह जो बाइबल ने पहले ही बताए, अन्य जातियों के दिन गिने चुने हैं, सतावट और उलझन से लौट आओ जो तितर बितर हुए अपनों के लिए। The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Just look at the bottom of the right. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Hallelujah. छुटकारे का दिन नजदीक है, डर के मारे मनुष्य को हृदय के दौरे पड़ रहे हैं। बस इसे देखें, वे सारे नसों के रोगी हो गए हैं। आत्मा से भर जाएं, अपने दिए की बाती को ठीक करे और साफ करे। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Amen. Glory! But the revelation's come. Hallelujah! So we'll walk where the apostles have trod, right in that same place. झूठे भविष्यवक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य को वे इनकार कर रहे हैं कि यीशु वो मसीह हमारा परमेश्वर है। महिमा लेकिन प्रकाशन आ चुका है, इसलिए हम चलेंगे जहाँ प्रेरितों ने कदम को रखा, ठीक उनके उसी स्थान पर। For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near. क्योंकि छुटकारे का दिन नजदीक है, डर के मारे मनुष्यों को हृदय के दौरे पड़ रहे हैं। आत्मा से भर जाएं, अपने दिए की बाती को ठीक करें और साफ करें। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। Oh, Joseph, when he seen little Benjamin standing there, that's his little brother. See little Benjamin out over yonder, sitting over there. ओह यूसुफ, जब उसने उस छोटे बियामीन को वहां पर खड़े हुए देखा, वही उसका छोटा भाई है। अब आप छोटे बियामीन को देखते हैं, वहां उस ओर वहां पर बैठा हुआ है। The tribes of the earth of the Jews returned back there, where there be 144,000 stand there to receive Christ when they see him coming. धरती की जातियां यहूदियों की वहां वापस लौट आई है, जहां उनमें से 1,44,000 वहां खड़े हो जाएंगे ताकि मसीह को स्वीकार करें जब वे उसे आते हुए देखते हैं। They'll say, "Oh, this is our God who we've waited on." Then they'll see the pierce. Where did these come? He said, "In the house of my friend." वे कहेंगे कि देखो, यह हमारा परमेश्वर है जिसके लिए हम इंतजार में हैं। फिर से छिदा हुआ देखेंगे, ये कहाँ से आए? उसने कहा, मेरे मित्र के घराने में से। And they'll wail, and they'll cry, and his family, the tribes of David and Nephilim, and all will separate themselves, his family, and weep to themselves when they see him standing in the air, the one they pierced. और वे विलाप करेंगे और वे रोएंगे, और हर एक परिवार, दाऊद और नेप्तालिम और वे सारे उनकी जातियां, वे अपने आप को अलग कर देंगे, हर एक परिवार। और जब वे उसे हवा में खड़ा हुआ देखते हैं तो वे रोने लगेंगे, वो एक जिसे उन्होंने छेदा था। What will his message be? Watch what Joseph said. When he said, watch another thing. When Joseph got the children before him, he looked at him, he's seen little Benjamin, he's seen Ephraim, he's seen the rest of them there, the Gad and all of them, and the 12 tribes, the 10 tribes then, standing before him. उसका संदेश क्या होगा? देखो,
यूसुफ ने क्या कहा जब उसने कहा, एक और बात देखना, जब यूसुफ उसके सामने संतानों को लाया गया तो उसने उनकी तरफ देखा, उसने बियामीन को देखा, उसने अप्रेम को देखा, उसने वहां के बाकी को देखा, गाद और उन सभी को देखा, और वे 12 गोत्र, तब वे 10 जातियां उसके सामने खड़ी थी। You seen them all stand there. He knew they were his brothers, and he looked at little Benjamin, reckoned his throat began to fill out. He knew that was his. What did he say? Let every man leave me. उसने उन सभी को वहां खड़ा हुआ देखा। वो जानता था कि वे उसके भाई थे, और उसने सीधा छोटे बियामीन की ओर देखा। उसका गला भर आया। वो जानता था कि वे उसके थे। उसने क्या कहा, हर एक जन मुझे छोड़कर चला जाए। What happened to his wife and children? They went into the palace. Where will the Gentile church go at the rapture? Into the palace. उसकी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ? वे महल में चले गए। अन्य जाति कलीसिया रैप्चर पर कहाँ जाएगी? महल के अंदर। The bride, hallelujah! The bride will be taken off the earth in the rapture. Then when he returns, his bride isn't there when he makes himself known to his brethren, the Jews, those who pierced him, those who rejected him. But his wife and his loved one, his close friends there, his own God-sent companions, has in the temple. वो दुल्हन, हालेलुया, वो दुल्हन पृथ्वी पर से रैप्चर में उठा ली जाएगी। फिर जब वह वापस आता है तो उसकी दुल्हन वहां नहीं होती है। जब वह अपने भाइयों को खुद को प्रकट करता है, यहूदियों को, जिन लोगों ने उसे छेदा था, जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके प्रियजन, उसके करीबी मित्र, उसके अपने परमेश्वर के भेजे हुए सहभागी मंदिर में थे। And when he looked, he said they didn't know. They said, "Oh, this great prince." They began to say one to another about these things and what they have done. और जब उसने देखा, उसने कहा कि वे उन्होंने नहीं जाना। उन्होंने कहा, ओह, ये महान राजकुमार, ये एक दूसरे से कहना आरंभ करते हैं, ओह, उन चीजों के बारे में जिन चीजों को उन्होंने किया था। I believe it was Ephraim, or not Ephraim, but I forget which one it was now. That said, well, we ought not to have killed our brother Joseph. Said, you see, we're getting paid back. मैं सोचता हूँ कि ये अप्रेम था या अप्रेम नहीं था, लेकिन मैं भूल गया कि यह अब कौन था जिसने कहा, तो हमें अपने भाई यूसुफ को नहीं मारना चाहिए था। कहा, तुम देख रहे हो कि हमें वापस भुगतान करना पड़ रहा है। Reuben said we ought not to have killed our brother. Said because you see we're getting paid back for what we done. And Joseph said, I didn't think he could understand Hebrew. But he noticed. रूबेन ने कहा, हमें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए था। उसने कहा, क्योंकि तुम देख रहे हो हमने जो किया है उसके लिए हमें वापस भुगतान करना पड़ रहा है। और यूसुफ वहां खड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा नहीं था कि वह इब्रानी को समझ सकता है, लेकिन वो इसे जानता था। Some things takes to understand speaking in tongues, but he knows all about it. The Gentile kingdom come in with speaking in tongues and interpretations. In the head of gold, the first head before it fell. कुछ सोचते हैं बोल नहीं सकता, अन्य भाषा को समझ नहीं सकता है, लेकिन वह इसके विषय में सब जानता है। जी हाँ, वह जानता है। सोने के सिर में पहला सिर है अन्य जाति का राज्य, अन्य भाषा बोलने और अनुवाद के साथ आता है। What ended that first Gentile dispensation? A handwriting of unknown tongues on the wall, and a man there could interpret it and tell what it was. It goes out the same way. Amen. Entered in, it goes out the same way. पहले उस अन्य जाति के समय काल का अंत क्या हुआ? दीवार पर अन्य भाषा का हस्तलेख, और वहां एक मनुष्य इसका अनुवाद कर सकता था और बता सकता था कि यह क्या था। यह उसी तरह से होता आया है। आमीन। प्रवेश करता है और उसी तरह होता हुआ निकल गया। They thought he couldn't understand them tongues that he's speaking, but he knew it. They said, "You see what we got?" उन्होंने सोचा कि वो अन्य भाषाओं को नहीं बोल सकता है जिसे वे बोल रहे थे, लेकिन वो इसे जानता था। उन्होंने कहा, तुमने देखा कि हमें क्या मिला? And
Joseph then seen their sorry for what they had done. Now he sees their sorrow and regret for rejecting him. So he's choking up in his throat now. He's ready to dismiss his church from the earth. Take her into glory. Amen. Then return and all the tribes of the earth shall mourn. और तब यूसुफ ने देखा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए वे दुखित हैं। अब उसने उनके दुख को देखा और उसे अस्वीकार करने के लिए पछतावा है। सो उसके लिए अब उसका गला घुटने लगा था। वह अपने कलीसिया को धरती पर से बाहर निकालने के लिए तैयार है। उसे महिमा में ले जाने के लिए बाद में वापस आता है और तब धरती की सारी जातियां विलाप करेंगी। What did they do? Reuben, all of them began to cry. They said, oh, they feared. They said, this is him. Now we know we're in for it. Now he will kill us. उन्होंने क्या किया? रूबेन, उन सभी ने रोना आरंभ किया। उन्होंने कहा, ओह, वे डर गए और कहा, यह तो वो ही है। अब हम जानते हैं कि हम इसीलिए अंदर हैं। अब वो हमें मार डालेगा। Now we know that we're going to be destroyed right now because that is Joseph that's been away from us so long. That's Joseph, our brother. Now we're really in for it. He said, don't be angry with yourself. God did this to preserve life. अब वह हम जानते हैं कि हम ठीक अभी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि यह यूसुफ है जो हमसे इतने लंबे समय से दूर रहा है। यूसुफ हमारा भाई, हम अब वास्तव में इसी बात के लिए अंदर हैं। उसने कहा, अपने आप पर क्रोधित मत हो जाओ। परमेश्वर ने जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया है। What did God do? Why did the Jews reject Jesus? So that we Gentiles, so that the people be called out for His name's sake. God did it to preserve the life of the Gentile church. Right. परमेश्वर ने क्या किया? यहूदियों ने यीशु को क्यों अस्वीकार किया? इसलिए कि हम अन्य जाति, सो कि वे लोग जिसे उसने अपने नाम के कारण बाहर बुलाया। परमेश्वर ने ऐसा किया ताकि अन्य जातियों की कलीसिया दुल्हन का जीवन बच जाए। All the tribes who rejected him will mourn. They'll hide themselves in dens and rocks and things. They hide all on the mountains. They rejected him. वे सारी जातियां जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, वे विलाप करेंगे। वे खुद को घने और चट्टानों में और इत्यादि में छिपा लेंगे, कहते हुए, छिपा लो, पहाड़ों हम पर गिरो। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उसे All the kindreds of the earth shall wail because of him, and each family in Israel there will separate themselves. Families will separate one from the other and say, why did we do it? How did we come to reject him? How? सारी पृथ्वी के कुल उसके कारण छाती पीटेंगे और वहाँ इज़राइल में हर एक परिवार अपने आप को अलग करेगा। परिवार एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और कहेंगे, हमने ऐसा क्यों किया? हमने भला कैसे उसे अस्वीकार कर दिया? कैसे? There he stands. There's the God who we've waited for. And there he is with nail prints in his hands, and we did it. That's exactly what them brothers said right down there when they come back and said, there's Joseph who we sold. वो वहाँ पर खड़ा होता है। वहाँ वो परमेश्वर है जिसके लिए हमने इंतजार किया है, और वहाँ पर वो है, उसके हाथों में कीलों के निशान हैं, और इसे हमने किया है। बिल्कुल यही है जो ठीक उन्होंने वहाँ पर कहा था जब उन्होंने वापस आकर कहा, वहाँ वह यूसुफ है जिसे हमने बेच दिया था। He said, I'm Joseph, your brother, who you sold into Egypt. Oh, they were scared, and they were mourning and wailing and run to one another. What can we do? He said, don't be angry with yourselves, because God did this all. God sent me ahead. उसने कहा, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। ओह, वे डर गए थे और वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे और एक दूसरे के पास जाकर कह रहे थे, हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा, अपने आप पर क्रोधित मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब किया। परमेश्वर ने मुझे आगे भेजा। God created all men, white man, black man, brown man, yellow man, every man. God created every man. He created the Gentile, created the Jew. He created all. It's all for His glory, and the Jews had to be rejected in order to take a Gentile bride.
परमेश्वर ने सारे मनुष्य को बनाया, गोरे मनुष्य, काले मनुष्य, भूरे मनुष्य, पीले मनुष्य, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने हर एक मनुष्य की सृष्टि की। उसने अन्य जातियों की सृष्टि की, यहूदियों की सृष्टि की, उसने सबको बनाया। ये सब उसकी महिमा के लिए है और यहूदियों को अस्वीकार करना था, जिससे कि अन्य जाति से दुल्हन को ले। That's the reason all these types are. So the Gentile bride and her offsprings with her, that glorious Pentecostal church washed in the blood of the Lamb with all the power of the resurrection living in them, will rise someday in the rapture in a moment, in a twinkling of an eye, to go be in the presence of Jesus while He returns back and dismisses everything to make Himself known unto His brethren. यही वो कारण है कि ये सारे उदाहरण हैं। सो अन्य जाति दुल्हन और उसके साथ जो उसका वंश है, वो महिमा में पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो मेमने के लहू से धोई गई है, पुनरुत्थान की सारी सामर्थ्य के साथ जो उनमें रहती है, किसी दिन रैप्चर में उठ खड़े होंगे, एक क्षण में पलक झपकते ही, ताकि यीशु की उपस्थिति में हो ले, जब वह वापस लौटता है और सबको वहां से निकाल देता है, जिससे कि वो अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करे। Watch what the Scripture says here in closing. Oh, देखो कि वचन यहाँ पर क्या कहता है समाप्त करते हुए। ओह, behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. Now He's talking about the second coming, not the rapture. And they also which pierced Him. देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। अब वह दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है, न कि रैप्चर के लिए, वरन जिन्होंने उसे भेजा था। 7th chapter, the seventh verse of the first chapter. 7वां अध्याय पहला पद या पहला अध्याय का 7वां पद। Every eye shall see Him, and they also which pierced Him, and all the kindreds of the earth shall wail because of Him. Even so, Amen. हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। Then he gives that great quotation. Who is this? Who is this they're going to look for? तब वह बड़े हवाले को देता है। ये कौन है? ये कौन है जिसे वे देखने के लिए जाने वाले हैं? I am Alpha and Omega. I'm A and Z. Amen. The Greek A and Z, Greek alphabet. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ए और जेड हूँ, यूनानी ए और जेड, यूनानी अक्षरमाला। Acts 2:36, Peter said, "There's not another name given under heaven whereby man must be saved." Or no, I beg your pardon, misquoting it. He said, "Let all the house of Israel know surely that God has made this same Jesus who you crucified both Lord and Christ." Amen. प्रेरितों के काम 2:36, पतरस ने कहा, आकाश के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य को बचाया जाना चाहिए, या नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इसे गलत बता रहा हूँ। उसने कहा, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। John 14:7-12, Thomas said, "Lord, show us the Father, and it's satisfied." Said, "I've been so long with you, you don't know me." Said, "He that seen me has seen the Father. Why sayest thou, show me the Father? I and my Father are one." Amen. यूहन्ना 14:7 और 12, थोमा ने कहा, परमेश्वर हमें पिता दिखाओ और यह हमें संतुष्ट करेगा। कहा, मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे नहीं जानते। कहा, वो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू मुझसे क्यों कहता है, मुझे पिता को दिखाओ? मैं और मेरा पिता एक हैं। I said that one time to a person, a lady said, "Just a minute, Mr. Branham." Said, "You and your wife are one too." I said, "But not that kind." मैंने एक समय एक व्यक्ति से कहा, महिला ने कहा, बस एक मिनट श्रीमान ब्रैनम। कहा, आप और आपकी पत्नी भी एक हैं। मैंने कहा, लेकिन उस तरह से नहीं। She said, "I beg your pardon." I said, "Do you see me?" She said, "I do." I said, "You see my wife?" She said, "No." I said, "Then they're a different kind." He said, "When you see me, you have seen the Father." So that was enough for that. उसने कहा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या आप मुझे देखती हैं? उसने कहा, मैं देखती हूँ। मैंने कहा,
क्या आप मेरी पत्नी को देखती हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तब वे एक अलग प्रकार से है। यीशु ने कहा, जब आप मुझे देखते हो तो आप पिता को देखते हो। तो इसके लिए इतना ही काफी था। So, in St. John, or 1 John 5:7-8, you ought to put it down. 1 John 5:7-8, the Bible said, the speaker, the very same man that wrote this revelation that Jesus gave him. सो संत यूहन्ना या पहला यूहन्ना 5:7 से लेकर 8 में आप सभी जो इसे लिख रहे हैं, पहला यूहन्ना 5:7 से लेकर 8, बाइबल ने कहा, वो बोलने वाला व्यक्ता वही मनुष्य जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा था, जिसे यीशु ने उसे दिया। He said, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word is the Son. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. उसने कहा, वहाँ तीन हैं जो स्वर्ग में गवाही को देते हैं, पिता, वचन, वचन वो पुत्र है, पिता वो वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही हैं। There are three that bear record in earth, water, blood, and spirit, and they agree. Not are one, but they agree in one. वहाँ धरती में तीन हैं जो गवाही को देते हैं, पानी, लहू और आत्मा, और वे सहमत होते हैं। एक नहीं है, लेकिन वे एक में सहमत होते हैं। You cannot have the Father without having the Son. You cannot have Father or Son without having the Holy Ghost. Right. But you and water, blood, and spirit. That's the elements it takes to get into His body. आपके पास बिना पुत्र हुए पिता नहीं हो सकता। आपके पास पिता और पुत्र नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा हुए बिना। सही है, लेकिन आप और पानी, लहू और आत्मा, यही वो तत्व है जो उसकी देह में ले जाते हैं। When a natural birth takes place, what's the first thing happens when a woman giving birth to a baby? First thing is water. Second thing is blood. Is that right? Next thing is spirit. जब एक स्वाभाविक जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जब एक स्त्री बालक को जन्म देती है, पहली चीज ये पानी है, दूसरी चीज लहू है। क्या सही है? अगली चीज आत्मा है। The baby catches the breast or breathing. Water, blood, and spirit. That constitutes the natural birth, also the spiritual birth. वो बालक अपनी सांस को पकड़ता है, सांस लेना आरंभ करता है। पानी, लहू और आत्मा वो स्वाभाविक जन्म को संगठित करते हैं, आत्मिक जन्म भी। Water baptism in the name of Jesus Christ. Justification by faith. Believing on the Lord Jesus Christ. Water. What's the next? Blood. Sanctification. Cleaning up. Getting around. पानी का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा धर्मीकरण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए। पानी। अगला क्या है? लहू, पवित्रीकरण, साफ करते हुए, उसे बाहर करते हुए। That's where you Nazarene people failed. You just went that far and didn't go no farther. The vessel is sanctified on the altar, ready for service, but not in service. वही जहां आप नाजरीन लोग चूक गए, आप बस उतना ही दूर गए और आगे नहीं बढ़े। वो पात्र जो वेदी पर पवित्र किया गया, सेवा के लिए तैयार है, लेकिन सेवा में नहीं होता है। Blessed are their beatitudes, are hungered and thirst for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे, धन्य उपदेश, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भर दिए जाएंगे। The vessel is sanctified, that's true. That's like the virgin. The word virgin means pure, holy, unadulterated, sanctified. 5 had oil and 5 did not. 5 was filled and the other just remained in sanctification. वो पात्र पवित्र हुआ है, यह सही बात है। वह कुंवारी की तरह है। वो शब्द कुंवारी का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, बिना मिलावट का। पवित्र हुआ। 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। 5 भरे हुए थे और वे दूसरे केवल पवित्रीकरण में ही रहे। Have you received the Holy Ghost since you believe, you Baptists, Presbyterians? We don't know where to be the Holy Ghost then. How was you baptized? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तुम जो बैप्टिस्ट हो, प्रेस्बिटेरियन हो, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। फिर तुमने कैसे बपतिस्मा लिया? After he laid his hands upon them, they were then, after being saved and sanctified, they were filled with the Holy Ghost. Right. उसके उन पर हाथ रखने के बाद, तब वे बचाए जाने के बाद और पवित्र हुए थे। उसके बाद वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। सही है। Water, blood, spirit. Jesus
come to wash and to cleanse and to sanctify a church that He might come and live in with His own blood. पानी, लहू, आत्मा यीशु धोने और शुद्ध करने के लिए आया, और ताकि एक कलीसिया को पवित्र करे, जिससे वो आकर उसमें रह सके, उसके अपने खुद के लहू से। He gave His own God-born blood that He might cleanse us from our sexual birth and given to us a sanctified holy vessel that He Himself might come. उसने अपने ही परमेश्वर से जन्मे लहू को दिया, जिससे वह हमें हमारे शारीरिक संबंध के जन्म से साफ कर सके और हमें एक पवित्रीकरण को दे, पवित्र पात्र, जिससे कि वो खुद आ सके। A little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, because I, personal pronoun, will be with you, even in you, to the end of the consummation. Amen. थोड़ी देर रह गई है और ये संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में संसार के अंत तक रहूंगा। आमीन। All the way through, I'll be with you, and in you the works that I do shall you do also. These signs shall follow them that believe. God in the church. वहां से होते हुए मैं तुम्हारे साथ और तुम में रहूंगा। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर कलीसिया में है। Oh my! Deity. There are three that bear record in heaven: Father, Word, Son, Holy Ghost. They are one. ओह प्रभु, दैविकता स्वर्ग में तीन हैं जो गवाही को देते हैं, पिता, वचन, पुत्र, पवित्र आत्मा, वे एक हैं। Now you can be saved without being sanctified. You can be sanctified and not have the Holy Ghost. Right? Sanctified spirit without being filled. Sanctifying your heart. Cleansing your heart without filling it with something. अब आप बचाए जा सकते हैं बिना पवित्रीकरण हुए। आपका पवित्रीकरण हो सकता है और पवित्र आत्मा नहीं होता है। यह सही है। पवित्र किया हुआ आत्मा बिना भरा हुआ, आपके हृदय को पवित्र करते हुए, आपके हृदय को साफ करते हुए, बिना किसी चीज के साथ भरे हुए। That's what it said when the unclean spirit's gone out of a man. He walks in dry places, comes back, finds his house all garnished. He comes in. The last state of that person is many times, 7 times worse than it was at the first. यह वही है जो उसने कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से बाहर चली जाती है, वो सूखे स्थानों पर चलता है। अशुद्ध आत्मा वापस आता है, अपने घर को पूरी तरह से सजा हुआ पाता है और अंदर आ जाता है। उस व्यक्ति की अवस्था कई गुना, 7 गुना पहले से भी बदतर हो जाती है। That's what happened to you, Pilgrim Holiness, Nazarenes, and so forth. You accepted Him when the Holy Ghost come, begin to speak in tongues and give signs and wonders. You called it the devil and blasphemed the works of God, called it an unclean thing, and you see where your church went? यही है जो आप पिलग्रिम होलीनेस वालों का हुआ है। नाजरीन और इत्यादि आपने स्वीकार किया है, और जब पवित्र आत्मा आता है, अन्य भाषा में बोलना आरंभ करते हैं और चिन्ह और चमत्कार को करते हैं, तो आप इसे शैतान कहते हैं और परमेश्वर के कामों को दोषी ठहराते हैं। इसे एक अशुद्ध चीज कहते हैं। और क्या आप देखते हैं कि आपकी कलीसिया कहाँ निकल चुकी है? Come out of it! The hour is here. The revelation of Jesus Christ is being taught. God revealed in the power of His demonstrations of the Holy Ghost. Amen. The day of redemption is near. Now, deity in Him. 1 Timothy 3:16. उसमें से बाहर निकलो, वो घड़ी यहाँ पर है। यीशु मसीह का प्रकाशन को सिखाया जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के उसके प्रमाण की सामर्थ्य में प्रकट हुआ है। आमीन। छुटकारे का दिन निकट है। अब दैविकता उसी में। 1 तीमुथियुस 3:16। Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh, seen of angels, believed on the world, received up in the glory. और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद महान है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। Oh, it's on and on and on. But where are we at now? At the end of the 8th verse. Tonight we start the 9th verse, the Patmos vision. Oh, there's great things in store for us. You love Him. ओह, बस आगे और आगे और आगे। लेकिन अब
हम कहाँ पर हैं? 8वें पद पर। आज रात को हम 9वें पद से आरंभ करेंगे। पतमुस का दर्शन। ओह, हमारे लिए महान चीजों को संग्रह करके रखा है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीद दिया कलवरी के पेड़ पर। You really do that? Has God made Himself known to you? Been revealed that He is the Son of God, Jesus Christ, God manifest in the flesh to take away sins. He's revealing Himself in these last days in His churches, making Himself known. क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं? क्या परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह है? परमेश्वर देह में प्रकट हुआ ताकि पाप को दूर करे। वह अपने आप को कलीसियाओं में इन अंतिम दिनों में प्रकट कर रहा है, जिससे वह खुद को ज्ञात करवाए। Now, if these very things that's going on in the church, watch and see at the end of this message that if the Bible don't say these things are to take place. Just exactly. अब ये वही चीजें हैं जो कलीसिया में चल रही हैं। ध्यान दें और देखें इस संदेश के अंत में कि क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि ये चीजें होने वाली है। बिल्कुल उसी तरह से। See if they didn't exactly in the Ephesian age and the Pergus, Thyatira, on down every age told how Luther would do it, how Wesley would do it, and how this Pentecostal denomination would go into a lady of sin, lukewarm condition, but in the midst of that, it pulled the people. Right. So exactly. देखो, क्या वे वास्तव में इफिसियन युग में नहीं थे और पिरगमुन, थुआतीरा और आगे इस युग में बताया कि लूथर कैसे करेगा और वेस्ली कैसे करेगा और कैसे यह पेंटिकॉस्टल संप्रदाय एक लौदकिया में चला जाएगा गुनगुनी स्थिति में, लेकिन इसके बीच में वह लोगों को खींच लेगा। यह सही बात है। यह बिल्कुल ऐसा ही है। We're at the end. Oh, I'm so glad. As I see myself breaking away and look at my friends and things and see the world and the chaos that it's in, and then think that the coming of the Lord is drawing so near. We're at the end of the age. हम अंत में हैं। ओह, मैं बहुत ही खुश हूँ। और ओह, जैसा कि मैंने अपने आप को देखा है टूटते हुए और अपने दोस्तों और चीजों को और संसार और इस गड़बड़ी को जिसमें वे हैं, और फिर सोचता हूँ कि प्रभु का आगमन इतना निकट आ रहा है। हम युग के अंत में हैं। Man's hearts are failing for sin. Yes. Everywhere, everybody, there's alarming on the radio all the time. Be ready for an air raid. Take this in, take that in. Go down the basement. How you going to hide from that? डर के कारण मनुष्य को हृदय का दौरा पड़ रहा है। हर कहीं, हर कोई, ये हर समय रेडियो पर चेतावनी दी जा रही है। हवाई हमले के लिए तैयार रहें। इसे अंदर में ले ले, उसे अंदर ले और नीचे तहखाने में चले जाएं। आप भला इससे कैसे छुपेंगे? Can't hide from that. That thing will go 150 feet in the ground for 150 miles square. While the concussion of it, it hit, you're shaking Annapolis to the ground. While it just blow in Annapolis to pieces, hit right in low. See? One of those. Hard to tell what they got besides that. उससे छिपा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, वह चीज 150 फुट जमीन के अंदर चली जाएगी। 150 स्क्वायर फुट, क्योंकि इसकी हिलावट, यदि ये वहां पर प्रहार किया जाता है तो यह जमीन पर इंडियाना पॉलुस तक को हिला देगी, क्योंकि यह इंडियाना पॉलुस को उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो ठीक यहाँ लुइसियाना में पहुंचेगा। देखो, उसमें से एक यह बताना मुश्किल है। इसके अलावा उनके पास और क्या क्या है। And look, you don't have to. You don't rush. You don't have to do that. Cuba can do that. Any little bitty place, a little bitty place the size of Alcatraz out yonder can do it. Cover the whole world. और देखो, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जानते हैं, रूस को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
क्यूबा ऐसा कर सकता है। कोई भी छोटे से स्थान पर एक छोटा सा स्थान उस और अल्कातर्ज के आकार का इसे कर सकता है जो सारे संसार तक फैल सकता है। Only you have to just line her up and pull one string. You don't need no army. You just need one fanatic to do it in the hands of the devil. That's exactly right. You do it. Then the whole thing is over. It's all over then. केवल एक चीज जो आपको करनी है वह है बस उसे ऊपर लाकर और एक तार को खींचना है। आपको सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसे करने के लिए एक कट्टरपंथी की आवश्यकता है जो शैतान के हाथों में है। यह बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा करेगा और उसके बाद सारी चीज खत्म हो जाती है। यह सब खत्म हो जाता है। But oh, let me give you this blessed thing. When we see that so close, when we see that it could happen before morning. Remember, the church goes home before that happens. The rapture takes place before. लेकिन ओह, मैं आपको इस धन्य चीज को देता हूँ। जब हम इसे इतने नजदीक से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि यह सुबह होने से पहले हो सकता है, याद रखें, यह घटित होने से पहले कलीसिया घर चली जाती है। इससे पहले रैप्चर जगह को ले लेता है। Now, you might not get twisted up. Remember, Jesus said, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot. Remember, before any rain fell, Noah was in the ark. See? अब जिससे तुम मुड़ नहीं सकते, याद रखना, यीशु ने कहा जैसा कि नूह के दिनों में था, जैसा कि लूत के दिनों में था। याद रखो, इससे पहले कोई बारिश गिरे, नूह जहाज में था। देखा? Noah was in the ark. He is carried over through the... And now Noah was a type of the Jews. But Enoch went home without dying. नूह जहाज में था, उसे इसके जरिए से बच निकाला। और अब नूह एक यहूदी का नमूना था, लेकिन हनोक मरे बिना ही घर चला गया। And when Noah seen Enoch go, he knew it's time to start on that ark. Right. That was Noah's time when Enoch went home. And as soon as the Gentile church is taken away, then he makes himself known to Israel. See? That's right. और जब नूह ने हनोक को जाते हुए देखा, वह जान गया यही वो समय है कि जहाज को आरंभ करना है। ये सही बात है। यह नूह का चिन्ह था। जब हनोक घर चला गया और जैसे ही अन्य जाति कलीसिया उठा ली जाती है, तब वह खुद को इजराइल को प्रकट करता है। समझे? ये सही है। Remember, in the days of Lot, as Jesus said, before one speck of fire ever hit the earth, that angel said, "Hasten, hurry, get out of here, for I can't do nothing until thou hast come hence." याद रखें, लूत के दिनों में जैसा कि यीशु ने कहा, इससे पहले कि आग की एक चिंगारी कभी धरती पर टकराए, उस दूत ने कहा, दौड़ो, जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो, क्योंकि मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम अतः आ नहीं जाते। Before any fire hit, Lot and his family was out and gone. So the rapture will come before the tribulation sets in. इससे पहले आग लगे, लूत और उसका परिवार बाहर था और खत्म हो गया। इसलिए महासंकट होने से पहले रैप्चर हो जाएगा। The tribulation, many people get that mixed up. We'll get it straightened this week, the Lord willing, by the help of the Lord. महासंकट बहुत से लोगों ने उन्हें मिश्रित कर दिया है। हम इस सप्ताह इसे सीधे सीधे ले लेंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो, प्रभु की सहायता से। Remember, you're looking for a great tribulation period. That was, if you type that in the Bible, that was Jacob's troubled age, you see. When he was troubled, that had nothing to do with the Gentiles. The Gentile has nothing to do, no type in the Bible to that. The Gentile church is raptured. याद रखना, आप एक बड़े महासंकट के काल के लिए देख रहे हैं, जो था। यदि आप बाइबल में नमूने को देखें, जो कि याकूब के परेशानी के दिन थे, आप देखें जब वो परेशानी में था, अन्य जातियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। अन्य जातियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में कोई नमूना नहीं है। अन्य जाति कलीसिया का रैप्चर हो जाता है। And you're looking for the water to turn into blood and things like that. That comes over to Israel again, back there with Moses and Elijah. When they return, Elijah for the fourth time returns back in the spirit. और आप पानी का लहू में बदलना इसके लिए देख रहे हैं, और इस तरह की चीजों के लिए जो वहां पर इजराइल के लिए वापस आता है,
मूसा और एलिया के साथ जब वे वापस आते हैं, एलिया चौथी बार आत्मा में वापस लौटता है। Neither of those was dead, or if Moses died, they didn't know where they buried him. He's bound to be raised up somewhere between then and that, because on Mount Transfiguration there he was talking to Jesus. न तो उनमें से कोई मरा था या मूसा मरा, वे नहीं जानते थे कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया है। वह उस समय और उसके बीच कहीं तो जी उठने के लिए बाध्य था, क्योंकि रूपांतर के पहाड़ पर वो वहां पर था, यीशु से बातें कर रहा था। क्या वो नहीं कर रहा था? देखा। So they'll come back and be killed and lay in the spiritual street called Sodom, where our Lord was crucified, Jerusalem. सो वे वापस आकर और मारे जाएंगे, और जिसे आत्मिक मार्ग कहा जाता है, सदोम, वहां डाल दिए जाएंगे जहां हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यरूशलेम में। And it will be preached to the Jews and smite the earth and close the heavens and so forth like that. And the end of the Gentile ministry will carry over and connect with that, and the Gentiles will go home and that ministry will go on. वे यहूदियों के लिए प्रचार करेंगे और धरती पर प्रहार करेंगे और आकाश बंद करेंगे, और इसी तरह से इत्यादि, और अन्य जातियों की सेवकाई आगे स्थानांतरित होकर और इसके साथ जुड़ जाएगी, और अन्य जाति घर चले जाएंगे और वह सेवकाई आगे बढ़ेगी। There will be the doom of all things. 2/3 of the earth fell and everything else, and them dead bodies laid in the street 3 days. Watch what kind it was. वहाँ सारी चीजों का नाश होगा, धरती का 2/3 भाग गिर जाता है, और बाकी का सब कुछ जब 3 दिन तक सड़क पर वे मरे हुए शरीर पड़े रहते हैं, तो देखो कि यह किस तरह से था। Look at these pictures I got from down South America. When they killed that Pentecostal missionary there, his wife laid in the street, and him and 2 little children, little girl, and a little belly swelled up like that. इन तस्वीरों को देखो, मुझे वहां दक्षिण अमेरिका से मिली है, जब उन्होंने उस पेंटिकॉस्टल मिशनरी को मार डाला, उसकी पत्नी और वो और 2 छोटे बच्चे वहां सड़क पर पड़े हुए थे। वो छोटी लड़की और उसका छोटा सा पेट इस तरह से फूल गया था। They wouldn't even bear him walked on spitting there on him like that for 3 or 4 days. Brother Cobb taking the picture, I got him at home. See, the way they do. उन्होंने उन्हें दफनाया भी नहीं, वहां से निकल गए, इस तरह से उन पर थूकते हुए। वे 3-4 दिन तक पड़े थे। भाई कोप ने तस्वीरें खींची, वे मेरे घर पर हैं, देखो जिस तरह से वे कर रहे हैं। Then they send gifts one to another. Look how that types in the Bible. You see what church is going to do that. Right. Right at hand and moving right in like a snake right now, just as cunning as it could be, signing the things right down. फिर वे एक दूसरे के लिए उपहारों को भेजते हैं। देखो कि बाइबल में ये कैसा नमूना है। आप देखें कि कलीसिया यह क्या करने जा रही है। यह सही है, ठीक सामने है, और ठीक अभी एक सांप की तरह चल रही है। जितनी वो चालाक हो सकती है, वो है ठीक अभी उन बातों के चिन्ह है। Look at the prophecy the Lord gave me in 33, how it would happen. They'd permit women to vote, and voting they'd elect the wrong person. 7 things is given, 5 of them's already happened. इस भविष्यवाणी को देखें जिसे प्रभु ने मुझे 33 में दिया। ये कैसे होगा? वे महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देते हैं। मतदान में वे गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं। 7 चीजें मुझे दी गई थी, और उसमें से 5 पहले ही हो चुकी हैं। Next thing was a great woman, a church of power, or something to take over this United States to rule. Then I seen it just like ashes running. Before it comes to the end. It's the end time. अगली चीज, वो एक बड़ी महिला, एक कलीसिया, एक सामर्थ या कुछ और इस संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिकार में ले लेती है राज्य करने के लिए। तब मैंने इसे राख की तरह देखा, पड़ा हुआ देखा है, जहां ये अंत में आता है। ये अंत का समय था। It said they have a machine that could drive. They didn't have to have no driver in it. They just perfected it. It said 11 years. The Holy Spirit said to me, there is no paper. It can't be denied. इसने कहा उनके पास एक मशीन है जो चलाई जा सकती है। उनके पास इसे चलाने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने इसे अभी तैयार कर लिया है। इसने कहा 11 वर्ष। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ये वहाँ पन्नों पर लिखा है, आप नहीं कर सकते, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। There is no paper. The Holy Spirit said 11 years before the Maginot Line was built, I said the Germans, America, this President Roosevelt will be the rascal of all of them. And that's right, he was. ये वहाँ पन्नों पर है, जैसा कि पवित्र आत्मा ने कहा। 11 वर्ष पहले मैजिनॉट लाइन का निर्माण होने से पहले मैंने कहा था वे जर्मन, अमेरिका तब
राष्ट्रपति रूजवेल्ट उन सभी का दुष्ट होगा, और यह सही है, वो था। Not hurt you Democrats' feelings, but I'm telling you, it's not a Democrat or Republican now, it's Jesus Christ, the Son of God that we're talking about. I'm neither Democrat nor Republican, I'm a Christian. So whatever it was, but you notice that. आप लोकतंत्रवादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह अब लोकतंत्रवाद या प्रजातंत्र नहीं है, यह यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं ना तो लोकतंत्रवाद या ना ही प्रजातंत्र हूं, मैं एक मसीह हूं। सो फिर वे जो कुछ भी थे, लेकिन आप वहां ध्यान दें। Look here the other day, if you want to see what a renegade bunch that is, taking those machines and fix them where every time you vote for Mr. Nixon, you had to vote for this other fellow at the same time. और यहाँ देखो, एक दिन यदि आप देखना चाहते हैं कि एक विश्वासघाती झुंड क्या है, उन मशीनों को लेते हैं और उन्हें ऐसा बनाते हैं जहां हर बार जब आप श्रीमान निक्सन के लिए वोट डालेंगे तो आपको उसी समय पर ये दूसरे व्यक्ति को वोट चला जाता है। Hey, G. Edgar Hoover pulled the machines out. How many's been reading it? Sure, it's all about the whole papers, news, and everything else. You see where we're at? There's nothing honest no more but Christ. Amen. ये एडगर हूवर ने मशीनों को बाहर निकाला। कितने लोग इसे समझ रहे हैं? क्योंकि अवश्य ही ये सारे अखबारों में, समाचार और बाकी सभी पर आया है। आपने देखा कि हम कहाँ पर हैं? वहाँ मसीह के अलावा कुछ और ईमानदारी नहीं है। आमीन। Oh, that blessed old book. That's it. That's the only one that tells you who you are, where you come from, and where you're going. Yes, sir. It's this blessed old book. Oh, that makes me love him, don't you? ओह, धन्य है वो पुरानी किताब। ऐसा ही है, यह केवल एक किताब है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, यह वह धन्य पुरानी किताब है। ओह, जो मुझे उससे प्रेम करने को लगाती है। क्या यह आपको नहीं लगाती? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. पिता में विश्वास, पुत्र पर विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास, ये तीनों एक हैं। दुष्ट आत्माएं कांपने लगेंगी और पापी जाग उठेंगे। यहोवा में विश्वास किसी को भी हिला देता है। What a great day is ahead of us, friends. The revelation of Jesus Christ that God gave to His angel and come and signified it to John, that it might be known to the church ages the thing that's in store for us. आमीन। क्या ही महान दिन हमारे सामने है मित्रों। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने अपने दूत को दिया और आकर इसे यूहन्ना को वर्णन करता है, जिससे कि यह कलीसिया के युगों में से होते हुए जाना जा सके, वे बातें जो हमारे लिए बचा कर रखी हैं। May the Lord bless us now as we stand to our feet. And everyone who's playing the piano, give us a little chord. If you will take the name of Jesus with you. होने पाए परमेश्वर अब हमें आशीष दे। जैसा हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हमेशा जो पियानो को बजाता है, हमें जरा स्वर को दें। यदि आप चाहें तो यीशु के नाम को अपने साथ लें। Now, listen, there is no doubt there's strangers here among us in the tabernacle this morning. I want you to shake their hands, invite them, go home with you, and what more, and make everybody welcome. I want everybody to be sure to do that. अब सुनना, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की सुबह यहाँ हमारे बीच मेहमान लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके हाथों को मिलाएं, उन्हें आमंत्रित करें, उनके साथ घर जाएं और जो भी है और हर एक का स्वागत करें। मैं चाहता हूँ कि हर कोई निसंदेह ऐसा करे। And remember, the service will start at 7 o'clock tonight, and at 7:30 I'll be speaking the vision on Patmos. Tomorrow night, the Lord willing, I'll be speaking on the first church age, Ephesus, the church age. और याद रखें कि सभा आज रात 7 बजे आरंभ होगी और 7:30 को मैं पतमुस के दर्शन पर बोलूंगा। कल रात प्रभु ने चाहा तो मैं पहले कलीसिया के युग इफिसुस पर बोलूंगा।
Now we're going to sing, Take the Name of Jesus with You, our little tabernacle dismissing song, and let everyone sing now. All right. अब हम गीत गाने जा रहे हैं। यीशु के नाम को अपने साथ लें, हमारे भवन का छोटा सा समाप्त करने का गीत है। और अब हर एक जन गाए तो ठीक है। यीशु के नाम को अपने साथ लें, दुख और शोक की संतान, यह आपको आनंद और सुकून देगा। हर कहीं तुम जाते हो इसे ले जाएं। बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। Before we sing the next verse, I want Methodists, Baptists, Pentecostals, Catholics, Nazarene, Pilgrim Holiness to all just reach around, shake hands with somebody in front of you, at the side of you, at the back of you. Say, Christian Pilgrim, friend, I'm glad to have you here this morning, glad to fellowship with you around the things of God. You know, we've had a great time. Hope to see you here again tonight. Something like that. As you shake hands with people in front of you, back of you, around you. अब इससे पहले कि हम अगले पद को गाएं, मैं चाहता हूं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक, नाजरीन, पिलग्रिम, होलीनेस, वे सभी बस यहाँ वहाँ जाकर किसी के साथ हाथ को मिलाएं जो आपके सामने है, आपके पास, आपके पीछे। कहें, मसीह यात्री मित्र, मैं आज सुबह आपको यहाँ पाकर खुश हूँ। परमेश्वर की उन बातों के इर्द गिर्द आपके साथ संगति करके खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा समय था। आज रात आपको फिर से यहाँ देखने की आशा है। ऐसा ही कुछ जब आप लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, आपके सामने, आपके पीछे, आपके आसपास, यीशु नाम पर झुकते हुए आज रात को मिलते हैं। भाई नेविल आज रात को मिलेंगे। पैरों पर स्वर्ग में राजाओं का राजा, हम उसे ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। ओ बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं यीशु के चरणों में, जब तक हम मिलते नहीं, 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 परमेश्वर आपके साथ रहे। जब अब हम अपने सिर को झुकाते हैं, जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं,